So you are provided with a list of patients. You have to prioritize them. Okay. So first start reading the step 1, then I will display the remaining. मैम लिस्ट कहाँ है पेशेंट की? क्या लिस्ट पेशेंट की नहीं नजर आ रही। लिस्ट? एक दफा मैं लिस्ट लगा लेती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ताकि आप जब वो दूसरा इधर उधर हो जाए तो आपको ये लिस्ट में वो मसला ना हो। सब ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मजे की बात है, मैंने प्रायोरिटी भी आप लोगों को दिखा दी है, ठीक है। टोटल 11 पेशेंट्स हैं। एग्जाम में ये प्रायोरिटी वाला कॉलम नहीं होता है, ठीक है। तो अब मैम वो ये पूछती तो है ना, वो प्रायोरिटाइज करने का पूछती है एग्जामिनर। वो तो पूछती है। ये प्रायोरिटी और जी स्टाफ एलोकेशन वाला कॉलम और इनिशियल मैनेजमेंट वाला नहीं होता, जस्ट कंडीशन, रूम एंड जी कंडीशन, मैडम वो तो ठीक ठीक है। सो है। आप स्टार्ट करो। Okay, Assalamu alaikum. My name is Dr. Humera, senior registrar here and on duty today. I have reviewed the labor board and I'm now going to prioritize the cases, allocated my team and outline the initial management plan. Patient safety is my first priority and I will escalate to the consultant as needed. I will categorize the patient into urgent, semi-urgent, routine based on the maternal and the fetal risk. My priorities are the red immediate cases, which include the cases with immediate risk to the mother or the fetus. For example, postpartum eclampsia, fetal distress, suspected uterine rupture. Amber sign or the semi-urgent will include the high risk but currently stable cases. For example, cardiac disease in labor, twin, previous cesarean section for VBAC. And the green or the routine cases will include the stable, progressing normally, or awaiting review. For example, spontaneous labor, induction for the intrauterine fetal death. And in the third step, I will allocate my team and team member according to the complexity and the urgency of each cases, ensuring the most experienced staff are with the sickest patients. I will personally manage the most urgent cases with the anesthetist and the senior trainee, and I will assign other trainee and midwife to the semi-urgent and routine cases, matching their skill to the clinical need. In the fourth, I will ensure all the team members are clear on their roles and responsibilities. In the fourth step, initial management plan will include for each urgent cases, state clearly room 3 is of postpartum eclampsia. So I will lead the management with the anesthetist and trainee 1. Immediate ABC assessment will be done. Magnesium sulfate started. BP for the control of the BP, blood and the blood investigation transfer to the high dependency or the ICU care as needed. Room 2 consisting of the case of the fetal distress, and I will allocate the T3 and a midwife. And immediate and the management will include the immediate CTG interpretation, prepare for the instrumental or the cesarean delivery if not improving. Room 1 consisting of previous and cesarean section with persistent pain. So I will send my T2 and midwife to monitor the scar rupture and will continue the CTG regular review and escalate if any concern. For the semi-urgent and routine cases, briefly state, room 6 the coarctation of the aorta, which is cardiac disease. So I will send T2 and the midwife to closely monitor the vital and escalate for any cardiac concern. In the room 3, this is case of monochorionic monoamniotic twin and midwife under my supervision, double CTG, early anesthesia involvement. Routine cases will be assigned to the midwife for ongoing monitoring and the support. In the step 5,
I will communicate and reassess. I will ensure regular ward round and handover, reassess priorities as the situation evolves, and the document all the plan clearly. I will call for additional help or escalate to the consultant if the workload exceed our capacity or if a patient is deteriorating. Step 3 involving the closing the statement. To summarize, I have prioritized all the cases, allocated my team based on the skill and the case urgencies, and outlined the initial management plans. I will maintain clear communication, ensuring regular assessment, reassessment, and escalate as needed to ensure the patient safety at all times. Tips, tips for the OSCE. Madam, you could tips. हाँ. Use a use a calm and organized tone, सो reference आपने guideline or protocol. हम्म, हम्म. अब माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया इसमें देखो. ये जो रिकॉल है ये कॉमनेस्ट रिकॉल है, हमेशा यही वाला आया हुआ है, ठीक है. बट स्टिल अगर इसमें कुछ चेंजेस हो वो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे. टिप यही है कि आप की जितनी भी कोशिश करें कि प्रोटोकॉल्स और जो गाइडलाइंस है उनके जो रेफरेंसेस है वो यूज करते हुए बताएं कि जैसे कि अब इसकी फॉर एग्जांपल अगर ट्विन है तो आप कहेंगे कि अगर केफेलिक प्रेजेंटेशन है, शी इज नॉर्मल स्टेबल, सो अकॉर्डिंग टू आरसीओजी गाइडलाइंस आई विल अलाउ द लेबर टू प्रोग्रेस. ठीक है, इस तरह करके आप उसको मजीद यानी खूबसूरत बना सकते हो. बार बार जब आप अपनी जो जितने भी आपके सेंटेंसेस हैं उनमें कोशिश करो कि अपनी टीम को इन्वॉल्व करो, अपनी कम्युनिकेशन को और एस्केलेशन को. एस्केलेशन का मतलब ये है, जैसे हमने कहा ना पिछले भी सेंटेंस में, कि हम रीअसेस करेंगे. जरूरी नहीं है पेशेंट्स की कांस्टेंट तो फाइंडिंग्स नहीं रहती है ना, कांस्टेंट नहीं है, वो कंटिन्यूस चेंज होती रहती है. तो बोलेंगे हम बार बार जो है पेशेंट को रीअसेस करेंगे और एस्केलेट करेंगे Further अकॉर्डिंग टू द management. सिचुएशन. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं. बहुत सारे लोग लेबर जो वर्ड प्रायोरिटाइज करते हैं इस सेंटेंस को भूल ही जाते हैं कि रीअसेसमेंट भी है, डिसीजंस चेंज भी हो सकते हैं, मेरे सीनियर कंसल्टेंट्स भी हैं, उनके साथ में इन चीजों को तो ये तो थी उसकी रिकॉल. अब हम आते हैं लेबर वार्ड केसेस को हम कैसे ट्राइएज. ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ये अगर याद आ गया ना आप लोगों को तो मतलब ये रिकॉल जो है ये मैडम ये 10 मिनट्स में 10-11 केसेस हो जाते हैं. ना देखो अपने उसपे जो फिर रूटीन के एग्जाम भी थे, एग्जामिनर जो रूटीन के थे भी उस पे तो क्वेश्चन बात करनी ही नहीं होती है. की. उस पे कहा कि आई विल रिव्यू देम जस्ट लाइक रूटीन. ठीक है. ये मैडम रूटीन में भी होंगे तो सिर्फ एक आधी केस होगा रूटीन का, एग्जाम में तो सारे डिफिकल्ट केसेस ही होते हैं. ये आप लोगों की एमसीपीएस की कैंडिडेट थी पटवाना, सेम यही रिकॉल दूसरा माशाल्लाह उसने क्लियर कर दिया 10 मिनट में, उसने बता दिए. इंशाल्लाह एमसीपीएस कैंडिडेट भी कर दिया. ठीक है. हिम्मत, बस अपने अंदर ये हिम्मत और जज्बा रखो. अपनी जिंदगी में किसी भी चीज से खौफ नहीं करना. ये हुआ तो हुआ, नो. 10 मिनट क्या बोलूं, मुझे 5 मिनट दे दो ना, मैं कर अपने अंदर ये. अच्छा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं पढ़ना और ये हमारे लिए हमें करेंगे हुमा. हुमा. जी मैडम थोड़ा सा जूम कर दें बस. हुमा ये एक जी टिप्स है. मैडम. ठीक है, दीज आर टिप्स, दीज आर नॉट केसेस. नाउ दीज आर द टिप्स कि हम किन को अर्जेंट बनाते हैं और किन केसेस को हम सेमी अर्जेंट बनाते हैं. अगर लेबर में कोई भी पेशेंट आ गई या वो वाला लेबर रिपोर्ट अगर ना भी हुआ, चेंज करके इन्होंने दिया, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. ठीक है, कि कौन सा केस अर्जेंट. सही है. जी मैम. सो ये जो नीचे से है केस सिनेरियोस, उनकी की क्लिनिकल फीचर्स, उनका प्रायोरिटी लेवल, कौन उनको अटेंड करे और रीजंस क्या है प्रायोरिटी की, ये आपने एक ही उसमें पढ़ना है. यानी पोस्ट पार्टम एक्लिप्सिया
क्या है आपकी नजर? जी मैडम। फर्स्ट, postpartum eclampsia. Key clinical features: seizures, high BP, postpartum. Priority level urgent. It will be red color. Who should attend? Senior obstetrician, ST3 onward to 7 or above, anesthetist, triage midwife, and support workers. Life threatening condition needs immediate senior review and reassess. Ma'am, because it is a life threatening condition like यस, emergency, na? यस, यानी आपका अगर कोई भी लेबर बोर्ड हो, उसमें जी जी अगर सब फिट्स। हाँ एक्लम्शिया है तो इट इज ऑन अर्जेंट बेसिस। यस मैम, फिट्स है ना? मैडम एग्जाम में भी इसी तरह बोलना है क्या? अगर वो ये केसेस हमारे पास एक पेपर पे लिखे हुए आते हैं क्या? मैं हाँ वो जो मेरे पहले फर्स्ट टाइम वाला में मैं, नहीं आया था ये। हाँ नहीं ये जो पेपर पहले वाला जो मैंने शेयर किया था उसी तरह आता है, लेकिन मैं टिप्स बता रही हूँ, दीज आर द टिप्स कि अगर एक्लम्शिया है नहीं वो डॉक्टर, मैं पूछना चाह रही हूँ आते कैसे? सिर्फ पेपर पे लिखा हुआ होता है, ये डायग्नोसिस लिखा हुआ होता है, रूम नंबर लिखा हुआ होता है? रूम नंबर, पेशेंट का नेम, और कौन सी ग्रेविडा है, और की फाइंडिंग्स जैसे फिट्स के साथ है, जैसे ब्लीडिंग के साथ है, एपीएच है, या जैसे डी सेल्स के साथ है। ठीक है, बस यही लिखा हुआ डायग्नोसिस। होता है। बस हाँ, बाकी आपके जिम्मे होता है सारा। मैडम इस तरह डायग्नोसिस नहीं होती, केस सिनेरियो का नाम इस तरह? मतलब उसकी छोटी सी ब्रीफ सी समरी, ग्रेविडा क्या है, उसकी कंडीशन, जी रिस्क जी फैक्टर उसका क्या है, ठीक है। जी और बस बाकी आप फिर पूछते हो, फॉर एग्जांपल जैसे अगर मुझे सिर्फ दिया हो ना कि एक्लेम्शिया है, तो मैं फिर भी कंफर्म करूंगी कि मैडम इज शी हैविंग फिट्स नाउ। हो सकता है एक्लेम्शिया पहले फिट्स में थी, अब ठीक है, सही है। आपको जी जी जी। उसी दोबारा उससे फाइंडिंग्स लेनी होती है, ये भी स्ट्रक्चर डिस्कशन है और ये भी म्यूचुअल डिस्कशन में कवर होता है। Okay, madam. Next, madam, fully dilated with the variable decelerations. Key clinical features are fetal distress and imminent delivery needed. So it is also urgent. I will allot to the senior registrar ST3 onward up till 7 and triage midwife, anesthetist if operative delivery likely, and maternity support worker. So a fetal compromise and urgent delivery is the, like here indication is fetal compromise. So we will put it in urgent. ऊपर में मदर कंप्रोमाइज था, इसमें फीटल कंप्रोमाइज है हाँ मैडम। हाँ, गुड। फिर मैम केस सिनेरियो, previous cesarean section, persistent pain, 3 centimeter dilated. So this is a risk of scar rupture because persistent pain. Urgent. This is also urgent, and registrar ST3 onward up to ST7. Tri-age midwife and maternity support worker. So scar rupture suspected and senior review needed. मैम ये भी scar rupture है. एंड दिस इज Then रिस्क फॉर बोथ पीटो एंड बेटर, दोनों का रिस्क है इसमें। yes, yes ma'am. Next is placenta previa मैम with इसमें bleed. पीटीजी फाइंडिंग्स नहीं है स्कार रप्चर वाले में, हाँ वो अब परसिस्टेंट पेन है। इसमें नहीं है, ये सिर्फ हम डिस्कस कर रहे हैं कौन से केसेस हम किस तरह ट्राइज करेंगे, उस टाइम आप अपने एग्जामिनर से लेने हैं अपनी फाइंडिंग्स, ठीक है। अच्छा, हाँ मतलब इस तरह से भी तो होता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी व्हिच केस यू हैव टू गिव इन, सेकंड प्रायोरिटी और किस में करनी है और किस किस को एलोकेट करना है। हाँ हाँ, पहले वो ही किया ना हमने, उमेरा ने हाँ वो ही वही किया। जी जी हाँ, उन्होंने वो किया। हाँ तो अभी जो है ये केस है और इनमें अर्जेंट कौन से हैं और किस किस को, ये मुझे ये बताएं कि सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन ऑन कॉल कंसल्टेंट है हमारे हाँ। फ्लोर पे वो देते हैं ना कि आपके पास जो है सीनियर है और ST4 ST5 है हम्म, ST3 है, हम्म। तो इस जी हिसाब मैडम, से आप ऐसा और एक रजिस्ट्रार करके भी दिखा देते दें हैं हमें, हमारे। जैसे आप एग्जामिनर हैं हमें वो फाइंडिंग दें और फिर मतलब करके एक हमें तो एग्जाम्पल रजिस्ट्रार भी बता दें, देते एक हैं कि केस। आपकी रजिस्ट्रार भी आपके साथ है, तो यू आर रजिस्ट्रार हियर और तुम्हारे पास ये मतलब टीम में है, तो क्या करोगी इस तरह से। हाँ, कि जैसे आपके पास ये टीम है, आपका ये केस है, इसके साथ आया है और आप इसको प्रायोरिटाइज करें और मैनेज जैसे करें। मैडम प्रायोरिटाइज इस तरह करके मुझे एलोकेट करके करेंगे बता दें। और किस रूम में कौन सा पेशेंट जाएगा। सबर करो, ये स्लाइड हम बाद में करेंगे हुमैरा, अभी आपने यहाँ पे यही तो किया ना। सबर में ला रही हूँ दोबारा से, यहाँ पे ये केसेस थे, ठीक है आपके सामने, ठीक है। मैडम और बोलने का स्टाइल पूछना चाह रही हूँ कि एग्जाम में कैसे उसको करेंगे।
सारे सेंटेंसेस मैंने इसमें लिख दिए हैं, यही मैडम सेंटेंसेस। मैंने देखा नहीं ना एग्जाम में कि कैसे इस तरह का आता है, इसलिए पूछना चाह रही थी आपसे। ठीक है, हम इसको दोबारा से जब मॉक करेंगे ना, तब जब जुबानी करोगे तब, अब देखो वो तैयार हलवा मिल गया, इसलिए तुम लोगों को समझ नहीं आई आया। विल, हाँ ये है इसीलिए समझ नहीं आ allocate रहा the डॉक्टर। देखो ये है ना, जी। स्टार्ट ही आपने यही किया कि मैं सीनियर रजिस्ट्रार हूँ, लेबर बोर्ड मैंने हाँ हाँ वो बस किया सही है, है, ठीक सही। है। अब मुझे प्रायोरिटाइज करने केसेस को, मेरी टीम मेरे साथ है, जो टीम आपको दी हुई होगी उस टाइम, ठीक है। यूजुअली वो लोग एक ST1 देते हैं, एक ST2 देते हैं, ST3 देते हैं, ST4 आप हो, और एक सीनियर रजिस्ट्रार देते हैं, ठीक है, वो उनके नाम लेने होते हैं आपने। फिर आप आउटलाइन द मैनेजमेंट प्लान, पेशेंट सेफ्टी मेरी प्रायोरिटी है, ये आपने, ये सारे आप ही के कहे हुए जुमले हैं, अभी आपने बोले हैं। जी जी। देन आपने हाँ कहा सही कि है। आई हैव कैटेगराइज देम अकॉर्डिंग टू देयर, जो उनके रिस्क हैं, ऑन बेसिस ऑफ अर्जेंट, सेमी अर्जेंट एंड रूटीन केसेस, एंड मैटरनल एंड फीटल, ठीक यस। है। एंड आई विल अलोकेट माई टीम मेंबर्स, तो आप अलोकेट तो कर रहे हो ना, यही तो आप सारे सेंटेंसेस बता रहे हो। सही है, क्या, बस बस सही है। ठीक है, ये सारा दिया हुआ है मैंने रिकॉल, और अभी हमने किया, ठीक है। हाँ इस तरह से जाता है। ठीक है, पोस्टमार्टम एक्लेम्पशिया को तुमने क्या दिया, तुमने ST1 को भी खड़ा कर दिया, लेकिन एनेस्थेटिस्ट को भी क्यों? एनेस्थेटिस्ट एक्लेम्पशिया में हम क्यों खड़ा करते हैं, वो उसकी जो फाइंडिंग्स हैं, और खासकर जो इसका एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, एनेस्थेटिस्ट बहुत जबरदस्त तरीके से उसको हैंडल कर सकता है। और फिलहाल हमारी जो लेबर रूम है वो बहुत फुल्ड है, 11 पेशेंट है, टीम कम है, तो आपने एनेस्थेटिस्ट को भी अपने साथ इन्वॉल्व कर लिया है, ठीक है। साथ में आप उसको ABC कर रहे हो, मैग्नीशियम दे रहे हो, BP कंट्रोल कर रहे हो, सब कुछ तो आप कर रहे हो, यही आपको एग्जाम में बताना होता है। गॉट सही इट? सारे केसेस का हमने इसी तरह सही किया है, आखिर तक रूम 1 का, रूम 6 का, सारे हमने कर लिए। सही। अब ये हम टिप्स कर रहे हैं कि अगर एग्जाम में ये वाला लेबर बोर्ड नहीं आया, कोई और आया, तो आप लोगों को पता होना तो चाहिए कि उसको किस एक्लेम्पशिया तरह से? हाई रिस्क है, रिस्क ऑफ रप्चर हाई रिस्क है, डी हाई सेल्स रिस्क है, हाई रिस्क है। स्ट्रेस हाई रिस्क है, हाँ फीटल डिस्ट्रेस। हाँ, अब आ जाओ प्रीविया प्लेसेंट। मैडम अब करूं? हाँ, जी मैडम। Placenta previa with the bleeding, painless vaginal bleeding. This is also urgent. Senior registrar will handle it with the triage midwife and anesthetist and support worker. Hemorrhage is a risk, life threatening, and rapid escalation. It needs like hemorrhage है ना, shock में आएगी. Then, madam, severe preeclampsia, BP more than 160 divided by 110, and headache like symptoms, visual symptoms. So this is also urgent, like impending होगा ना, so urgent, and senior obstetrician, triage midwife, and anesthetist and support worker. So risk of eclampsia or stroke. मैम इसमें symptoms थे ना. Acha. Next is cord prolapse, sudden fetal bradycardia. It also needs urgent delivery. So senior obstetrician, triage midwife, anesthetist, and social sport worker. So immediate delivery required, whether instrumental or operational. Madam, shoulder dystocia is also an obstetrical emergency. So shoulder stuck after the head डिलीवरी एंड अर्जेंट. मैम ये भी अर्जेंट है क्योंकि ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी है. सो सीनियर रजिस्ट्रार, triage midwife, anesthetist, and support worker, fetal hypoxia and emergency maneuvers. So, preterm labor, less than 37, contractions, cervical changes, urgent. Madam, ये urgent है? 37 weeks, ये तो अच्छा. Registrar, ST3 onward up till 7, triage, midwife, neonatologist, and support worker. Preterm birth risk, neonatal team. मैडम ये प्री टर्म जो है ना, इसकी उस कहाँ पे पे हो? डिपेंड करता है. ये मुझे लगता है कि ये अर्जेंट पोस्टमार्टम, नहीं लगता मुझे. ये कहाँ पे हो, रप्चर्ड प्रीटर्म में हो? मैडम प्री टर्म लेबर वाले में, जी जी. हाँ, कंट्रैक्शन अच्छा ये प्री सर्वाइक, टर्म. प्रीटर्म क्यों नहीं मैडम होता ये? देखिए. हम्म, अच्छा. न्यूनेटल क्या ठीक ठीक. प्रीटर्म रिस्क पे नहीं होता, स्टिल बर्थ का, तो जी इसमें न्यूनेटल रिस्क है, फीटल रिस्क है। जी जी मैडम. रप्चर मेम्ब्रेन्स प्लस कोरियो, फीवर, टेंडरनेस, रप्चर्ड मेम्ब्रेन, अर्जेंट. रजिस्ट्रार, ST3 onward 7, triage, midwife, support worker, and maternal and fetal infection risk. हम्म Uh, Postpartum hemorrhage, heavy bleeding. Definitely, this is urgent. Senior obstetrician, triage, midwife, anesthetist, support worker, life-threatening bleeding. Madam, ये तो है emergency हम्म both. हम्म Coarctation of aorta, cardiac disease, labor, semi-urgent.
registrar ST3 to 7, triage midwife, anesthetist and सपोर्ट वर्कर, कार्डियक मॉनिटरिंग एंड अर्ली एस्केलेशन, इसमें मॉनिटरिंग करनी है ना, तो सेमी अर्जेंट है। मोनोकोरियानिक मोनोएमनियोटिक ट्विन इन द लेबर, मोनोकोरियानिक ट्विंस लेबर, सेमी अर्जेंट, रजिस्ट्रार ST3 to 7, triage midwife and neonatologist and support worker, twin monitoring and risk of cord issue, वो किस पे भी मॉनिटरिंग करनी है मैडम, ये सेमी अर्जेंट है। सो प्रीवियस 2 scars फॉर वी बैक, लेबर विद द प्रीवियस 2 cesarean सेक्शन, दिस इज सेमी अर्जेंट, इसमें भी मॉनिटरिंग होती है ST3 to 7, ट्राइज मिडवाइफ, सपोर्ट वर्कर, कंटिन्यूअस CTG, सीनियर इनपुट, यस मैडम। डायबिटीज इन द लेबर, पुअर ग्लाइसेमिक कंट्रोल, मैक्रोसोमिक रिस्क, सेमी अर्जेंट है मैडम, सीनियर रजिस्ट्रार ST3 to 7, ट्राइज मिडवाइफ एंड सपोर्ट वर्कर, ग्लूकोज मॉनिटरिंग एंड डिलीवरी प्लानिंग, मैडम ये भी सेमी अर्जेंट है। अच्छा, एस्मा exacerbation in the labor, wheezing, hypoxia, semi-urgent, registrar ST3 to 7, triage midwife, support worker and respiratory support and monitoring. Third degree perineal tear awaiting suturing, perineal injury post delivery, semi-urgent है मैडम, अब हो गया। ये आता भी है, ये registrar रिकॉल है। ST3 अच्छा याद रखना, ये इसका एक रिकॉल है लेबर बोर्ड में, इसी तरह से थर्ड डिग्री पेरिनियल टियर दैट इज अवेटिंग सुचरिंग, ये आपने सेमी अर्जेंट में रखना है, ठीक है, आया है ये रिकॉल। वो उसका जो डिजास्टर था वो हो गया। हाँ। एनेस्थेटिस्ट एंड सपोर्ट वर्कर, सो टाइमली रिपेयर, प्रिवेंट इन्फेक्शंस। ओके, लेबरिंग विद द बीपीडी क्या है मैडम? लेबरिंग बीपीडी विद, ये लंग डिजीजेज है ना, COPD होगा, सीओपीडी, COPD, लंग, हाँ हाँ सीओपीडी, लंग डिजीजेज है। क्रोनिक लंग डिजीज, ओप्स, स्टेबल हाँ, लेबर, रूटीन, मैडम ये रूटीन में आता है, हम्म, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। और हाँ, ट्राइज मिडवाइफ एंड सपोर्ट वर्कर करनी होती है और एस्केलेट करना है अगर अनस्टेबल है। अच्छा, इंडक्शन ऑफ आई इंट्रायूट्राइन डेथ, ये भी नो फीटल हार्ट, ये तो बिल्कुल ही रूटीन है मैडम, ये तो हम एचओ को दे देंगे। ट्राइज मिडवाइफ एंड सपोर्ट वर्कर एंड इमोशनल सपोर्ट एंड जेंटल मॉनिटरिंग। ओके, स्पॉन्टेनियस लेबर ARM 1 hour ago, normal progress, routine, green, triage, midwife, support worker, routine monitoring. Then absent patient with from the labor ward. No present, not present for schedule care, routine, green, triage, ये आ जाता है कि पेशेंट एब्सेंट है, ठीक है। ऐसे पेशेंट को फिर आप क्या करते हो, ठीक है, आप ऐसे पेशेंट को नोटिफाई कर देते हो कि पेशेंट एब्सेंट है, सही है। और उसके पीछे मिडवाइफ को लगा देते हैं, बस वो ढूंढ के लाए और उसे खुद मॉनिटर करे मैडम, ऐसा, और फिर हमें रिपोर्ट करे। हाँ, वो ठीक है जो गायब हो गई है ना, ठीक है मैडम। नॉर्मल, जी जी नॉर्मल स्पॉन्टेनियस लेबर एट टर्म रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस, वेल, रूटीन, ग्रीन, और ट्राइज मिडवाइफ एंड सपोर्ट वर्कर एंड रूटीन केयर। मैडम इसमें ट्रिक भी हो सकती है मैडम, देखिए अगर हम अपने पास जितनी भी ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसीज हैं वो अलग से पेज पे लिख लें, फॉर एग्जांपल क्लेम्शिया, फिट्स, ब्लीडिंग सिवियर, रप्चर, मतलब वो तो फिर सीनियर मोस्ट बंदा ही करेगा ना। और जो इमरजेंसीज होंगी वो अर्जेंट में ही आएंगी। इमरजेंसीज और सेमी इमरजेंसी अगर हमारे पास पेज पे रिटन लिखा हुआ हो ना कि ये इमरजेंसी है, ये तो उसमें फिर इजी हो जाएगा। अब ये इलेक्टिव इंडक्शन भी है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये इलेक्टिव LSCS होती है, उसको आप वार्ड भेज देते हो, ठीक है, ये भी रूटीन है, इलेक्टिव इंडक्शन ऑफ पोस्ट इट्स, ठीक है। जी मैडम। So it was regarding the today's class. मैम